trying to move to the camera. Okay, that's fine. I would like to introduce our Helen Keller Center, which is located, as Alisab just said, on the third floor of this building. This center was established back in 2009, and the goal was that to develop sort of a friendship and a community center where people with disabilities and people without disabilities can come and interact, and that it becomes a source of information for people who are interested in knowing more about US, knowing more about US society, culture and values, programs, initiatives of the US Embassy. Scholarship programs have been organized by US Embassy and US Education Foundation in Pakistan. They've done programs on Fulbright scholarships. We've done program on women empowerment, on disability issues. Recently, we did a program on introduction of e-readers in libraries in Pakistan, and we have given e-readers, Kindles, some of you might be aware of that, where people can actually access books through small e-readers. Here I would also like to introduce our IRC, which is the Information Research and Communication Unit of the US Embassy. I'm part of that unit, and our goal is to promote library services and to promote information access. I would like to introduce eLibrary USA, that is access to more than 20 databases. These are the kind of databases that HEC gave a couple of years ago. And now that access is being reduced because of the cost associated with these databases. How many of you have actually used a database for your research? EBSCOhost or LexisNexis or ProQuest Direct? Okay. How many of you are associated with research in any way? आप में से कोई भी अगर किसी को रिपोर्ट लिखनी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है, कॉलेज के लिए कोई प्रोग्राम के लिए रिपोर्ट बनानी है, एक दो हाथ, I've seen some people who are actually involved in research. So eLibrary USA can give you access to that, and you have to become IRC member for that. And IRC membership is free of charge, and anybody who's above 18 can actually access it. But we are trying to promote this access to people who are actively involved in research work, because this database would be useful for people with an interest in research. It would also include information on disability issues, the many peer-reviewed journals that are available through these databases. Just a snapshot of what these databases can provide. We've got reference materials, including encyclopedias, books databases, including access to more than 20,000 books available through eBrary database. Then journals, academic journals, more than 7,000 academic journals, and then there is access to reports, CQ Global Researcher reports. Another unique feature of this database is the videos. We have access to more than 1,000 videos, which you can use. These can be training videos. You can utilize them for workshops, seminars. So these are some of the materials and resources that are available through eLibrary USA. If you're interested, you can fill up the forms. I'll leave some forms with Atif Saab, and later on, he can send those to us. I would encourage you to visit our Helen Keller Center sometime, and if you or your organization is interested to organize events like these in this location, please do contact us, contact Khadim Saab, and we'll be very happy to organize. Thank you very much for your time. We are thankful to the administration of Helen Keller Center, Friendship Center, and US Embassy, and to the President speaking, they have given us this opportunity to have this dialogue here. So, formally start the dialogue, and I would request Mr. Zarif Siddiqui, who is the Director General for Special Education, to join us on the stage, please. I would also request Mr. Shafiqur Rahman. And we have Mr. Jawad Afzal
from Director General of Special Education, so please join us. We have people who are working on disability issue, people working with disabled persons or disability in development in Pakistan, as well as we have our honorable guest, Mr. Jerome Mendes from American Institute for Research. He is very old friend of us, not old in the sense of age, but in the sense of friendship. So we are honored to have him here. We will use this, actually defining disability is an issue all over the world. That whether it should be defined in the medical terminology or a social terminology. And we are in this dialogue, with this limited number of people, we are trying to focus on the Pakistani context. How we will define disability in the Pakistani context. So we will have this discussion mostly in Urdu, because most of the people who will watch this program on the internet later on, they will be definitely Pakistani audience. And we will request Ali, our colleague, to translate in English for Jerry and the people who are sitting, other people who understand only English here. Disability की definition पे जाने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का एक तारुफ करवाना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी पे जो गुफ्तगू करने के लिए ये लोग जो मेरे साथ बैठे हैं पाकिस्तान में एक अथॉरिटी माने जाते हैं। ज़रीफ़ सदीकी साहब जो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल हैं स्पेशल एजुकेशन के, गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसे से डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट में इसी इदारे से वाबस्ता हैं। मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं पीरज़ादा साहब। पीरज़ादा साहब एक जर्नलिस्ट हैं, वेरी वेल नोन, और पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जर्नलिस्ट हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जर्नलिस्ट, जिनको पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड, जर्नलिज्म का अवार्ड, APNS अवार्ड मिलने जा रहा है, जो इन्होंने अभी रिसेंटली उस कंपटीशन को विन किया है। और डिसेबिलिटी और जनरल इश्यूज़ के हवाले से ही इज़ एन अथॉरिटी। हमारे साथ शफीक रहमान मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं माइलस्टोन सोसाइटी। माइलस्टोन सोसाइटी जो डिसेबल पर्सनस की क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। अब इस तंजीम को अभी 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 20 साल से पाकिस्तान में डिसेबिलिटी और डिसेबल पर्सनस को मोटिवेट करना और उनको एम्पावर करने में माइलस्टोन का किरदार पूरा पाकिस्तान इससे वाकिफ़ है। और शफीक रहमान का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के अलावा पाकिस्तान में भी इनका बहुत ज़्यादा नुमाया काम है। मुनज़्ज़ा गिलानी प्रोग्राम डायरेक्टर हैं साइट सेवर्स पाकिस्तान ऑफिस में। साइट सेवर्स गुज़श्ता 13 साल से डिसेबिलिटी में पाकिस्तान में और तकरीबन 60 साल से पूरी दुनिया में डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। उनका ओपिनियन डेफिनेशन के हवाले से हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जवाद अफजल साहब जो कि UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो अभी पाकिस्तान ने 2010 में रेटिफाई किया है, उस पर एक अथॉरिटी मानी जाती है। इस पर उसके सारे प्रोसेस में इनका एक नुमाया किरदार है और डेफिनेशन के हवाले से इनकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ज़रूर ये अपने उन तमाम ऑडियंस को भी ये क्रेडिट देना चाहूँगा। आफाक साहब VSO वॉलंटियर सर्विसेज ओवरसीज़ पाकिस्तान ऑफिस से उनके कंट्री डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। टेलीनॉर ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था 3 साल पहले, खुददार पाकिस्तान। टेलीनॉर से भी हमारे उस प्रोग्राम को जो रन कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डिसेबिलिटी एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टेप के साथ मुख्तलिफ NGOs के साथ एफिलिएटेड है, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। पहले इस फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि हम लोग जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय लेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगी और फिर आप लोगों की जो इनपुट, क्वेश्चन या फीडबैक एक इंटरेक्टिव तरीके से इस डिस्कशन को लेंगे। डेफिनेशन पे बात करना क्यों ज़रूरी है और इस डायलॉग की अहमियत क्यों है। पाकिस्तान में जो लोग हैं डिसेबल पर्सन जिनको कहा जा रहा है, या एक टर्मिनोलॉजी स्पेशल की जो यूज़ की जाती है, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं अप्रोप्रिएट, और ये अनकाउंटेड पॉपुलेशन क्यों है। हमारे यहाँ 2 एक्सट्रीम्स हैं जो हम सब जानते हैं कि या तो हम ओवर सेंसिटाइज होते हैं डिसेबिलिटी पे, हम उन्हें अल्लाह लोग या नेक लोग समझते हैं, उनकी मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, इसलिए हम उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं करते कि वो हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, या उनको डिसेबल कहा जाए। दूसरी एक्सट्रीम जो हम सब जानते हैं कि हम इसे एक हकारत की नज़र से देखते हैं कि शायद ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है,
गुनाहों की सज़ाएँ, इस वजह से भी हमने सोशल बाइकआउट से बचने के लिए हम उन्हें छुपाते हैं, और इस छुपाने की वजह से वो कभी किसी सेंसस में काउंट नहीं हुए। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट की फिगर्स के मुताबिक 2.49% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो डिसेबल्ड है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस और WHO ये 10% है, जबकि लेटेस्ट वर्ल्ड डिसेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक ये फिगर 15% के लगभग है। तो इतना बड़ा वेरिएशन, इतना बड़ा डिफरेंस ये सिर्फ डेफिनेशन ना होने की वजह से है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा शफीकुर रहमान साहब से कि अब डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम जो डेफिनेशन जो WHO, UN या बाकी डेफिनेशन जो यहाँ कोड की जा रही हैं, क्या आप उनसे एग्री करते हैं और किस हद तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ऐसा टॉपिक है ये जो कि इग्नोर था बहुत अरसे से। हम लोग मुख्तलिफ अवेयरनेस रेजिंग के प्रोग्राम और मुख्तलिफ लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस तो हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते रहे, और स्टेप ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे पाकिस्तान में एक नए कल्चर को अच्छे तरीके से रोशनास करवाने में। तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडवांस में कि ये इंशाल्लाह ताला ये जो डायलॉग स्टार्ट हो रहा है ये आगे चल के बहुत अच्छी राहें मुतय्यन करेगा, जिससे हम लोग ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने में कामयाब हो सकेंगे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के हवाले से, मैं इसको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक या अपने ज़र्फ़ के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक जो मुझे समझ आ सका है डिसेबिलिटी के हवाले से, वो इस तरह है कि पूरी दुनिया में अगर इंसानों को देखा जाए तो वो ख़वातीन हैं या हज़रात हैं। 49% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो हज़रात पे मुश्तमिल है, और 51 कहा जाता है कि ख़वातीन हैं। दुनिया की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि 90% हज़रात हो गए हों और 10% ख़वातीन रह गई हों, या फिर 10% ख़वातीन हो और 90% हज़रात हो। इस तरह बैलेंस जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या नेचर ने या किसी भी नज़रिए के मुताबिक जो भी जिसका ईमान है या जो भी जिसकी आइडियोलॉजी है, नेचुरल इसे कह लें या कोई रिलीजियस टच दे रहे हैं, जो भी इसे समझ लें, उसके मुताबिक ये एक ह्यूमन बैलेंस या एक इंसानों के दरमियान कायम है। डिसेबिलिटी जो है पूरी दुनिया में हमेशा से 10% से 15% लाजमी रहती है। जिस तरह हज़रात और ख़वातीन में एक तवाज़न है, इस तरह डिसेबल पर्सनस भी इंसानों के ग्रोह में 10 से 15% लाजमी रहते हैं। चाहे हिस्ट्री उठा लें या जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी तहकीक कर लें, मैं जहाँ तक देख सका मुझे तो यही पता चला कि 1950s में जब यूनाइटेड स्टेट में पोलियो ख़त्म हुआ था तो लोग समझते थे कि डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, पोलियो ख़त्म हो गया। जब फिर ये देखा गया कि जापान में पोलियो ख़त्म हुआ तो और साइंस ने इतनी केसेस को डिलीवर करने में या प्रेगनेंसी के जो इश्यूज़ थे उन पे इतना ज़्यादा काबू पा लिया, उन्होंने सोचा कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ शायद अब उन पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन जब फिगर सामने आती हैं तो 17.6% पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट की डिसेबल पर्सन पे मुश्तमिल है। तो ये कोई कंट्रोल अगर कोई समझता है कि कोई इंसान ऐसे हैं जिनको इस तरह नहीं होना चाहिए, तो ये एक बहुत बचगाना सी सोच शायद आज के दौर में ये बन जाती है। डिसेबल पर्सन इंसानों के ग्रोह में एक हकीकत के तौर पे मौजूद हैं। अब ये कौन से लोग होते हैं, ये आज हम यहाँ पे डिफ़ाइन करने की शायद कोशिश करें। ज़ाती तौर पे मुझे इंसानों की डेफिनेशन बनाने में एतराज़ है, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि इंसानों को ग्रुप्स में या एक क्या कहते हैं लेबल करके अलहदा कर दिया जाए, या कोई लेबल करना इंसानों को ये इंसानियत की शायद किसी लेवल पे जाके शायद तौहीन करार पाती है। लेकिन सर्विसेज के मैकेनिज़्म को डेवलप करने के लिए किसी भी सोसाइटी में शायद ये
डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है कि किन लोगों को सर्विसेज की ज़रूरत है, कौन से लोग आइसोलेशन में, कौन से इंसान आइसोलेशन में जा रहे हैं। तो असल में हम ये इंसानों की या डिफरेंट बॉडीज़ की या डिफरेंट आँखों की या डिफरेंट कानों की डेफिनेशन तलाश नहीं कर रहे, बल्कि हम डिफरेंट सर्विसेज की डेफिनेशन तलाश करने के लिए शायद यहाँ बैठे हैं। पहले जब मैं बच्चा था, अभी भी बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, बुज़ुर्ग कहने से माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये कि अभी भी मैं बच्चा हूँ, सोच के हवाले से अपनी बचगाना सोच है शायद मेरे ख्याल में। ये जो बचपन से हम लोग बातें सुना करते थे कि जनाब कि ये आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप में ये डिसेबिलिटी है, आप कोई बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी, वो पंजाबी में कहते हैं हिम्मत कार थोड़ी, ये की हो गया तो दिल्ली छाड़े बैठा। तो इस तरह के जुमले अक्सर हर फैमिली में डिसेबल पर्सन को सुनने को मिलते हैं। ये असल में इतनी बड़ी लाइल्मी है कि हम लोग डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। इतना ज़र्फ नहीं है कि हम किसी शख्स को उसके डिफरेंस के साथ एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करें या ना करें, इंसान तो वहीं पे रहता है ना, इंसान तो वहीं पे होता है। सवाल ये पैदा होता है कि सर्विसेज को डेवलप करने के लिए इंसानों के बारे में किन इंसानों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, या कौन से इंसान इग्नोर हैं, या कौन से इंसान डिसेबल्ड हो चुके हैं, मजूर कर दिए गए हैं। वो लोग कौन से हैं जो डिसेबल्ड हैं, जो कि माशरे के एक्सेसिबिलिटी के ना होने की वजह से, बहुत सारी बैरियर्स के होने की वजह से, या लाइल्मी की वजह से, या सिस्टम की लाइल्मी की वजह से, जिनको मसलन बहुत सारे जगहों पे मुक़य्यद कर दिया गया लाइल्मी की वजह से कि शायद ये मखलूकुल फ़ितरत किस्म के लोग थे, इनको शायद माशरे से अलहदा कर देना चाहिए, इनको हुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। इस तरह के ये कॉन्सेप्ट जो राइज हुए, ये सवाए लाइल्मी इसकी बुनियाद थी, इसके अलावा ये कुछ नहीं था। अदरवाइज़ दुनिया का कोई शायद इंसान ऐसा ना हो जो कि गिन के सांस ले सके। काउंटिंग करके आप सांस नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा किसी इंसान की औकात क्या होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। नहीं, जिसका रंग इस तरह होता है वो ब्लैक होता है, जिसका रंग इस तरह होता है वो वाइट होता है, जो तेज़ दौड़ सकता है वो जनाब चैम्पियन होता है, जो स्लो चल सकता है वो चैम्पियन नहीं होता। ये इस तरह की बातें जो हैं उनकी वजह से शायद हमें डिसेबिलिटी की डेफिनेशन जो इंसानों के बारे में नहीं है, सर्विसेज के बारे में, किन लोगों को सर्विसेज, कौन से लोग माशरे में डिसेबल्ड हो चुके हैं, उनके बारे में जानने के लिए डेफिनेशन शायद तलाश करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है यहाँ पर बैठने की। वैसे भी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मंजिल पे पहुँचना जो है वो अहम होता है, किस तरह पहुँचना ये अहम नहीं होता। यानी चलना अहम नहीं होता, पहुँचना अहम होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। जैसे कि शफीक ने कहा कि डिसेबिलिटी एक जो उनकी बातों से मैं अखज़ कर सका हूँ कि एक इन्वायरमेंटल इशू है, सिचुएशन का इशू है। इसको अगर हम इंसानों की डिवीज़न में ना इस्तेमाल करें कि ये डिसेबल है या नहीं, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ये इन्वायरमेंट या ये सिचुएशन डिसेबलिंग इन्वायरमेंट है, ये सिचुएशन है। मैं मिस मुनज़्ज़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ़, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरे साथ जो साथी बैठे हैं, मैं तो अपने आप को इन तमाम के दरमियान एक बहुत डिसेबिलिटी की फील्ड में एक बहुत अदना कारकुन के तौर पे समझती हूँ। इन लोगों का माशाल्लाह बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अरसे से ये लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं और काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो नहायत अहम है। अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब तक हमारे पास डिसेबिलिटी के हवाले से एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद नहीं होगी, हम लोग अपनी बहुत सारी सर्विसेज, जैसे शफीक भाई ने ज़िक्र किया सर्विसेज का, हम अपनी सर्विसेज और रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है वो कभी भी सही तौर पर नहीं कर पाएंगे। और इस डेफिनेशन की शायद आम कम्युनिटी को ज़रूरत नहीं है, इसकी अगर ज़रूरत है तो वो पॉलिसी प्लानिंग लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो फ़ैसला साजी के अमल में
इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हमारे लिए बजट्स एलोकेट करने होते हैं, जो अहम फैसले करने वाले लोग होते हैं, उनको इस चीज़ की ओरिएंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जहाँ तक कि आज तक जितनी डेफिनेशंस डिसेबिलिटी के हवाले से मौजूद हैं हमारे पास वो मेरे नज़दीक तमाम की तमाम बहुत वेग हैं या मुकम्मल तौर पे वेल डिफाइंड नहीं हैं। वेग इस हवाले से हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको डिफरेंट एंगल से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंडेट था उन्होंने उस मैंडेट के हवाले अपने मैंडेट को सामने रखते हुए डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। अगर आप जनरली देखें तो मुआशरे में हर वो फ़र्द डिसेबल हो सकता है जिसके लिए उसके इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के ख़यालात, एटीट्यूड्स उसके लिए अगर फेवरेबल नहीं है। अगर मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती अपनी फैमिली के नज़रियात और उनके बिलीव की वजह से, और मैं घर के अंदर मुक़य्यद हूँ, तो मैं एक डिसेबल ख़ातून हूँ। इसी तरह एक शख्स सीढ़ियाँ मौजूद ना होने की वजह से व्हील चेयर नहीं यूज़ कर सकता और दूसरी मंजिल तक नहीं जा सकता, वो भी डिसेबल है। तो मेरे नज़दीक डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के दो अहम फैक्टर्स हैं, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर और एक है एटीट्यूडनल बैरियर। अगर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर आपके लिए फेवरेबल नहीं है तब भी आप डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, और अगर जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो मुआशरा है, उनके एटीट्यूड और बिलीव्स जो हैं वो आपके लिए अनफेवरेबल हैं, वो आपको फेवर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो आप डिसेबिलिटी का सामना करते हैं। मेरे साथ जो बैठे हुए और मौजूद लोग हैं वो इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया, थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ पे ज़रूर डिस्कशन की जाए कि ये जो दो मेजर बैरियर्स हैं, हमारे माहौलियाती बैरियर्स और जो हमारे शऊर और आगाही की कम होने की वजह से जो हमारे एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, इनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है ताकि हम डिसेबिलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन लेकर सामने आए। तो मेरे ख्याल में तब हमारी ये जो डिस्कशन है एक फ्रूटफुल डायरेक्शन में जाएगी। थैंक यू। मैं एक यहाँ पे एक कोड करना चाहूँगा 1981 जो हमारा 1981 का ऑर्डिनेंस ऑन रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। इसके मुताबिक जो डेफिनेशन है, डिसेबल्ड पर्सन मीन्स a person who on account of injury, disease or congenital deformity is handicapped for undertaking any gainful profession or employment in order to earn his livelihood, and include the person who is blind, deaf, physically handicapped or mentally retarded। ये हमारे आइन जो हमारे ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिसेबिलिटी को गवर्नमेंट पाकिस्तान ने डिफ़ाइन किया है। इस पे मैं पीरज़ादा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस डेफिनेशन के हवाले से क्या कहेंगे वो। आतिफ शेख साहब, मैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया इस बात पे अदा करूँगा कि आपने कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी डिसेबिलिटी यानी लैंग्वेज बैरियर हटा के इजाज़त दी कि हम उस ज़बान में बात कर सकें जो सब तक पहुंचती है। मैं अपनी गुफ्तगू 3 मराहिल में तय करना चाहूँगा। चूँकि मेरा शोबा सहाफ़त से है, यहाँ पर बुनियादी तौर पर सीखने का अमल होता है और सवाल उठाने का। जैसा कि हम जानते हैं कि फादर ऑफ द फ़िलासफ़ी यानी सुकरात ने भी सारी ज़िंदगी सवाल उठाए, कोई नज़रिया पेश नहीं किया, इसी की शायद उनको सज़ा भी मिली। तो मैं अपने पहले मरहले में कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगा जो कि आगे चल के डिस्कशन की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में जो डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस मौजूद हैं, उनके होते हुए हम व्हील को री इन्वेंट क्यों कर रहे हैं? क्या वो डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस हमारे यहाँ अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो हमें उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या हमें री इन्वेंट करना चाहिए? इसके बाद कि क्या हम ये समझते हैं कि हमारा आज का ये फोरम, ये हाउस इस लिहाज से एनरिच है कि यहाँ पर तमाम डिसेबिलिटीज़ के लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी राय देकर एक ऐसा फार्मूला तय कर सकते हैं जो तमाम जगह इम्प्लीमेंट हो सके और जिनको काबिल कबूल किया जा सके। इससे आगे चला जाए
तो अगर हम देखें कि डिसेबिलिटी की डेफिनेशन ज़रूरी है या उस पर आगे काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं अगर अपने दूसरे मरहले में आऊं कि डिसेबिलिटी को मैं कैसे समझता हूं, तो जैसे मेरे पहले आने वाले दोस्तों ने कहा कि डिसेबिलिटी शायद पूरी दुनिया में एक जैसी होती है फिज़िकली, लेकिन जहां फ़र्क पड़ता है वो सोशली या एक्सटर्नली होता है। वो अक्कासी करता है उस माशरे की, उस सोसाइटी की, कि वो सोसाइटी का बिहेवियर एक फिज़िकल डिसेबल पर्सन के साथ कैसा है। और यहाँ मैं ये भी डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि दुनिया में अब जेंडर दो नहीं हैं, मेल और फीमेल नहीं, बल्कि 3 जेंडर मौजूद हैं जिनको मान लिया गया है। और इसके बाद साथ साथ मैं मुनज़्ज़ा की एक बात को बहुत एंडोर्स करूँगा कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के अलावा एक डिसेबिलिटी और भी है कि अगर एक ख़ातून को उसके सोशली नज़रियात की वजह से इर्द गिर्द से घर से बाहर ना जाने दिया जाए तो वो भी डिसेबिलिटी है। तो लिहाजा हम उस डिसेबिलिटी को डिस्कस करें जो सोशली जो हमें फेस करनी पड़ती है। इसके आगे अगर मैं चलूं तो डिसेबिलिटी को कैसे हम एबिलिटी में बदल सकते हैं, यहाँ मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि जैसे डिफाइंड हैं 4 डिसेबिलिटीज़, मैं चूँकि उसमें से एक डिसेबिलिटी का शिकार हूँ, लेकिन मैं इस डिसेबिलिटी को, अपनी ब्लाइंडनेस को मैं डिसेबिलिटी कंसीडर नहीं करता। दुनिया का वो हर काम जो मेरे प्रोफेशन में किया जाता है वो मैं कर रहा हूँ और बड़े अहसन तरीके से कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी है जो मैंने हासिल की है। लिहाजा अगर एक ब्लाइंड फ़र्द को आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दे दें तो वो उसकी डिसेबिलिटी ब्रिज्ड हो जाती है। मैं उसको डिसेबल नहीं मानता। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि दुनिया भर में ब्लाइंड लोग जो थे वो हर किस्म के प्रोफेशन, खा वो साइंस का हो